वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू बाइट। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा पिन आउट समझाया था। सबसे पहले आर्डिनो आईडी का बेसिक कोड समझ लेते हैं, देन वी विल जंप इनटू द एवीआर, ताकि आप लोग कॉरिस्पॉन्डिंगली समझ सको कि हम कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, किस फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंगली। तो अभी जो उसका सर्किट है वो सिंपल है, जस्ट अपने आर्डिनो मेगा या ऊनो कौन सा भी है उसको नॉर्मली कनेक्ट कर दो अपने लैपटॉप से बाय यूएसबी केबल। ओके, so now in the here if you are using software serial, that is if you are using those pins which are not hard, which are not in the inside of a microcontroller for UART, then we will use software serial.h library and here declare software serial in and the name of the any variable you can take and comma pins, and the first pin will correspond to RX and other pin will correspond to TX, and then simply whole code, all the functions, all the things will be same, just you have to add these two lines. बट मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल में इनको यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा। मैं जस्ट नॉर्मल सीरियल डॉट बिगिन से सीरियल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटिंग करूँगा। सो नाउ अभी देखो सीरियल डॉट बिगिन से वी आर टेलिंग माइक्रो कंट्रोलर कि हमें अब यूआर्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। सो इट इनिशलाइजेज ऑल द इंटरनल हार्डवेयर ऑफ द यूआर्ट कि उसको स्टार्ट करना, उसको सिग्नल भेजा कि ओके अब सीरियल डॉट कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो सकता है। सिमिलरली गेट टू बाइट डॉट बिगिन पे भी, बट अभी आप गेट टू बाइट डॉट बिगिन पे मैं इस पे मत करना फोकस। नाउ सीरियल डॉट प्रिंट एलन will simply print these on the screen. Okay, so now let me just show you by of the transmitting thing. I'm not doing anything for the receiver for the time being. Okay, so if I upload this, then I open the serial monitor, then you can see it's printing welcome to get to byte, follow get to byte. So here you have to specify the baud rate. There are many baud rates on which you can do communication. जो आप baud rate इधर select करोगे, just remember कि वही baud rate आप इधर serial dot begin के अंदर भी लिख रहे हो। Let's do one thing. अब मैं एक int variable बनाता हूँ a equals to 0, ठीक है? And now I just simply pass this serial dot println in a. So it will print the value of my variable a on the serial monitor. Okay. You can see 0 0 0. Now if I write here, now let's just change it to more complex, 23, and I write here hex. Okay, so you will see that it will print the hexadecimal value of my 23, that is 17. 23 is the decimal one and hex is the 17 is the decimal hex value of the 23. Okay, now if I write here let's say decimal, then it will only print 23. Okay, so now like these kind of manipulations you can do in here. Okay, it will print 23. Let me write here bin. Okay, so it will print the binary value of my a, that is of 23. The hexadecimal hex value is of 17. If you convert 17 by the conversion table of octal to that, then it will showing the binary of 23, decimal 23. Okay, just remember guys, this is decimal. We all when we doing embedded system, the number system points concept should be very much clear. तो हम जो भी इंटीजर्स है जो हम डेली लाइफ में प्रोग्राम में हम कन्वे करते हैं ना, वो सारे डेसिमल होता है, बट जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बाइनरी में समझता है 0101 में. सो फर्स्ट इट कन्वर्ट्स अ डेसिमल to a hex or to a hex, and then it converts directly to a binary. Okay, so now this is just a small demonstration what I show कि हम serial dot println से कैसे ऐसी चीज़ें होती हैं और क्या क्या functions होते हैं कि हम कोई से भी वेरिएबल को, किसी भी चीज़ को हमने इसमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच, कोई इंटीजर है तो a कर दिया सिर्फ, कॉमा बाइनरी हेक्स और वो उसकी प्रॉपर्टी या कौन सी उसका नंबर सिस्टम, कौन से फॉर्मेट में उसको प्रिंट करवाना है. नाउ लेट्स कम टू द रिसीवर पार्ट कि अब मैं कुछ सेंड करूँगा सीरियल मॉनिटर से एंड माई माइक्रो कंट्रोलर शुड रीड दैट पार्ट. सो फॉर रिसीविंग पार्ट मैंने सिंपली लिखा है कि स्ट्रिंग डॉट रिसीव मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल. अभी आप इसको भी छोड़ो, स्ट्रिंग वाले को भी
while serial.available checks whether any new data has been received on the RX pin on the receiver buffer. Okay, if there is any data, then it gives the number of characters जितने जो हमने भेजे हैं. Okay, so now let's just upload it. मैंने इसमें सिंपली करा है कि सॉरी ये अभी नॉट नहीं आएगा और ना ही ये आएगा. लेट मी री अपलोड इट. वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल, जब तक सीरियल डॉट अवेलेबल मतलब कुछ डाटा आ रहा है, मेरे इंट बाइट एक वेरिएबल बनाया और सीरियल डॉट रीड द इनकमिंग डाटा. ओके, सो अब मैंने इसको खोला, सीरियल मॉनिटर करा एंड आई जस्ट राइट 1. ओके, then you can see here it shows 49 and 10. Okay, wait, let me again do this, then you will be able to, yeah, okay, clear output. Just do this to no line ending. Okay, अब मैंने, okay, let me restart the microcontroller. Welcome to get to byte. Now I write any number to 1, then it shows 49. Now here 49 is decimal value of my character, or you can say character or ASCII character of 1. As I am using integer, so it character value of 1 is converted into 49, which is the decimal value. अगर मैं इधर char use करूँगा ना and then I upload the code, then you will see कि जो मैंने भेजा है मुझे वही भेजेगा, मुझे वही प्रिंट होएगा 1 1. जब मैं इंटीजर लिखूंगा, सो इट एक्चुअली स्टोर्स द डाटा इन माई ASCII वैल्यू, बट व्हेन आई राइट द कार, then it stores the value and it receives the value in the format on which I have sent. No change in number system. Okay, so here अब जैसे मैं कुछ भी सेंड करूँ, अगर इधर ए को भी प्रिंट करेगा, आर के भी प्रिंट करेगा, बट इफ आई राइट हेयर इंट, then it will print. अब मैं दिखाता हूँ आपको जस्ट ए का 97, इट प्रिंट्स द ASCII वैल्यू ऑफ द ए. ओके, मैंने ई प्रिंट करा, ई की ASCII वैल्यू 101 प्रिंट करेगा. जे प्रिंट कर रहा हूँ तो जे की ASCII वैल्यू, मैंने एंड अगर मैं एंड प्रिंट करूँगा तो इसकी ASCII वैल्यू विच इज़ 38 की वो प्रिंट करेगा, बिकॉज आई हैव डिक्लेयर्ड हियर माई वेरिएबल ऑफ इंट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ करते हैं. सो जस्ट रिमेंबर, अगर हम सीरियल डॉट रिसीव वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एंड वी वांट डाटा टू बी कैप्चर्ड एंड एनालाइज्ड, देन हम उसको कार में ही रिसीव करेंगे. दिस इज फॉर सिंगल कैरेक्टर ओनली. ओके, कैर में करा ए आया सिंपली, आपको मतलब 97 नहीं आया, एक्चुअली प्रिंट्स वाई करा तो वाई आया. ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव. अब तो मैंने भी सिंगल कैरेक्टर रिसीव करा, बट नाउ व्हाट आई वांट कि मुझे ना पूरा एक स्ट्रिंग ही, मैं जो स्ट्रिंग भेजूंगा यहाँ से, मुझे वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है. देखो, अगर मैं अभी जो कोई स्ट्रिंग भेजूँ ना ADFG, मान लो इफ आई सेंड गेट टू बाइट, ओके, देन ये इंडिविजुअली ये मेरा इंट बाइट के ऊपर, बाइट जो वेरिएबल है ना उस पर पहले G आया, then it get overrides by E, then it get overrides by T, B से override E से. तो ये इंट बाइट के अंदर जो अगर मैं फाइल लूप के बाद अगर मैं लिखूँ ना serial.println, अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ and I just comment this thing, then it will print only. So guys, अब the last character मैं आप लोगों को स्ट्रिंग को कैसे पूरा रिसीव और ट्रांसमिट का, जैसे तो पहले स्ट्रिंग को कैसे रिसीव करना है उसका बताऊंगा, फिर जो लास्ट कैरेक्टर से वही प्रिंट कर रहा है वो समझाऊंगा. सो जब तक स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो.